Hello and welcome back. In this lesson, we will talk about finite and non-finite verb. This lesson is for all the students. Dear students, what do you mean by finite and non-finite verb? Let me tell you one important thing, that we cannot think about a sentence without a finite verb. I mean to say that there must be a finite verb in a sentence. So what do we mean by finite and non-finite verb? Let's talk about it. Finite verb का क्या मतलब है? Finite verb हम उस verb को कहते हैं that changes by changing the tense, by changing the subject in number, and by changing the subject in person. You can also understand this with the help of this triangle. Here tense, and second point is subject in number, and third point is subject in person. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि you cannot guess whether a verb is finite or non-finite without looking at all these three things. First one is change the tense of the verb. Second one is change the subject in number. And third one is change the subject in person. Subject in number means if the subject is singular, change it into plural. And if the here subject in person means whether the subject is first person, second person, or third person. Now we can simply say that finite verbs are those verbs that change by changing the subject in number, by changing the tense, and by changing the subject in person. Now let's discuss non-finite verbs. Non-finite verb. Non-finite verbs are those verbs that do not change. That do not change by changing the subject in number, by changing the subject in person, or by changing the tense of the verb. There might be a question in your mind that how to identify a finite and non-finite verb in a sentence. Let's have some practice. यहां पर हमारा एक सेंटेंस हम ले लेते हैं. I want to play. ये बहुत ही छोटा सेंटेंस है. यहां पे I want to play. Let me tell you one important thing, that this small or little sentence, short sentence, has two verbs in it. One is want and second one is to play. This is main form, main verb, and to play is infinitive. This is infinitive. तो जब हम इस सेंटेंस का टेंस चेंज करते हैं तो क्या बनता है? I wanted to play. आपने यहां पे क्या देखा? हम यहां पे देखते हैं कि जब मैंने यहां पे टेंस चेंज किया तो want चेंज हुआ wanted में, लेकिन to play जो है it remained the same. ये बिल्कुल सेम रहा, इसमें कोई चेंज नहीं आई. तो ये वाला जो want और wanted ये फाइनाइट वर्ब्स हैं, और टू प्ले जो है इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई. तो दीज वर्ब्स आर नॉन फाइनाइट. ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं. एक और एग्जांपल हम लेते हैं. आई एम रनिंग अ रेस. नाउ लेट्स change the tense of this sentence.
I was running a race. Here in this sentence there are two verbs. Am is auxiliary verb, it is form of be verb, and running is main verb, present participle of run. लेकिन जब मैंने इस सेंटेंस का टेंस चेंज किया तो एम चेंज हुआ वाज में और रनिंग सेम रहा, इसमें कोई चेंज नहीं हुई। तो ये एम और वाज जो ही ये फाइनाइट वर्ब्स ही और रनिंग जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं ही sat on a broken chair. He sat on a broken chair. तो यहां पे मैं लिखता हूं, इसका टेंस चेंज करूंगा मैं, he sits on a broken chair. तो कौन सी तब्दीली हुई यहां पे? सैट ये जो पास्ट में था, अब इसको मैंने प्रेजेंट सिंपल में चेंज किया, तो यहां पर ये वर्ब इसमें चेंज हो गई, इसमें इस वर्ब ने अपनी शक्ल तब्दील की, लेकिन ब्रोकन जो है पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ब्रेक वो बिल्कुल सेम रहा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। तो ये नॉन फाइनाइट है और यहां पे सैट और सिट्स ये फाइनाइट वर्ब्स हैं। Now let's see some more examples. Here is a sentence, we go to school. Now let's change the subject in number. This time we will not change the tense of the sentence. We will change the subject in number. Here the subject is we go to school. We is first person plural. Let's change the subject into third person singular he. जब हमने यहां पे लिखा वी गो टू स्कूल, तो जब ही आ गया तो इसके आगे क्या आएगा? ही गोज टू स्कूल। तो क्या आपने देखा कहां पे तब्दीली हुई? जब हमने सब्जेक्ट का नंबर चेंज किया, ये प्लूरल था, इसको हमने सिंगुलर चेंज किया, तो गो की हालत क्या हुई? इट चेंज्ड इनटू गोज। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये गो जो है और गोज जो है ये दोनों क्या ही? ये फाइनाइट वर्ब्स हैं, ये फाइनाइट वर्ब्स। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। आई हैव अ पेन, आई हैव ए पेन। अगर मैं यहां पे, ये है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, अगर मैं सब्जेक्ट इन पर्सन यानी कि यहां पे पर्सन चेंज करूंगा, ये फर्स्ट पर्सन है, तो अगर मैं यहां पे थर्ड पर्सन इसकी जगह पे लगाऊंगा तो क्या आएगा? शी हैव नहीं रहेगा, फिर यहां पे आएगा शी हैज अ पेन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों हैव भी और हैज भी ये फाइनाइट वर्ब्स हैं, ये फाइनाइट वर्ब्स। तो इस तरह से यू कैन चेक एनी वर्ब विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री सिंपल डिवाइसेस। चेंज द टेंस ऑफ द वर्ब, change the subject in number और change the subject in person. अगर वर्ब की शक्ल तब्दील होती है, चेंज होती है, इसकी फॉर्म बदल जाती है, तो ये फाइनाइट है। अगर इसकी शक्ल बिल्कुल सेम रहती है, चेंज नहीं होती है, देन दैट वर्ब इज नॉन फाइनाइट। यहां पे मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि तमाम जो पार्टिसिपल्स ही वेदर वो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है या पास्ट पार्टिसिपल है, ये आमतौर से नॉन फाइनाइट होती है। क्या होती है? नॉन फाइनाइट। और जो फर्स्ट प्रेजेंट फॉर्म है या पास्ट फॉर्म है या ऑक्सिलरी वर्ब्स ही, आमतौर पे वो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, लेकिन हर जगह पे ये पॉसिबल नहीं है। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि टेंस देखना है, सब्जेक्ट का नंबर चेंज करना है, सब्जेक्ट का पर्सन चेंज करना है, तो इस तरह से आप अंदाजा कर सकते हो, गेस कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि वेदर द वर्ब इज फाइनाइट और नॉन फाइनाइट।
यहां पे मैं आपको एक एक्सेप्शनल केस बताऊंगा। एक्सेप्शनल केस नहीं है, बल्कि कहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है कि यहां पे ये मतलब क्या मसला हुआ, जज करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। यहां पे मैं आपको एक सेंटेंस दिखाऊंगा, ही मेक्स मी क्राई, ही मेक्स मी क्राई। देखो आपने ये अंडरस्टैंड पहले ही कर लिया है कि जो फर्स्ट फॉर्म है आमतौर से चेंज होती है, फाइनाइट वर्ब होती है, लेकिन यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जो हमें दिखने में फर्स्ट फॉर्म लगती है, प्रेजेंट फॉर्म लगती है, वो हर वक्त प्रेजेंट फॉर्म नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसका टेंस चेंज करेंगे, ही मेड मी क्राई, यहां पे हमने क्या देखा, मेक्स changed into made, so this makes is finite and this made is also finite, but here in this sentence cry is non-finite verb. अब एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा, I cry, I cry। अगर हम इसका टेंस चेंज करेंगे तो क्या आएगा, I cried। तो यहां पे हमने क्या देखा, यहां पे हमने देखा जो क्राई जो है ये फाइनाइट वर्ब है, और लेकिन यहां पर यही क्राई नॉन फाइनाइट है। तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यही है कि यहां पर जो मेक्स है दिस इज फाइनाइट वर्ब एंड हियर क्राई इज इन्फिनिटिव। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्फिनिटिव सिर्फ वही नहीं होते हैं जिनसे पहले तो होता है, जैसे हम बोलते हैं टू मेक, टू गो, टू लिसन, टू टीच, ऐसे ही इतने ही सारे इन्फिनिटिव नहीं होते हैं कि बल्कि टू के बगैर भी इन्फिनिटिव होते हैं जिनको हम बैर इन्फिनिटिव कहते हैं। और ये क्राई जो यहां पे है, इट इज बैर इन्फिनिटिव हियर, इट्स नॉट प्रेजेंट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो दिस इज एनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह वी विल टॉक अबाउट इट इन एनी अदर वीडियो। खुदा हाफिज।